Honorable members, I have received a notice under 267 by Sri Ghulam Nabi Azad ji, leader of the opposition, and some other members also. Sri Ram Gopal Yadav ji bhi hai, or Viswam, and then Sri Sanjay Singh, and करिता जी का नाम भी था पहले उसमें, बट उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा को स्वीकार किया, तो इसलिए वो तो आएगा नहीं. तो Elmar and Karim, I have gone through the subject. Subject is definitely important, but what I am suggesting is that I have received a letter from the Honorable Home Minister of India that they want to introduce an amendment bill in the House, Jammu Kashmir Reservation Second Amendment Bill, that we have already circulated also, and also have some more legislations government want to propose. So the subject is the same. So I suggest these issues can be raised during the discussion. As the chairman, I have waived the requirement of the rule of advance notice and then circulation beforehand and all. As the matter is very important and serious, I have decided to waive that rule according to the power given to the chair, power given to the chairman, and then I will be asking the minister to first introduce the bill, and then during the discussion, all the issues raised by LOP and others can be discussed at length, and I will be allowing them to give reasonable time also, particularly for the members who have raised the issue, because we don't have 0 hour, and we cannot entertain that, because this session is basically extended for completing the legislative business proposed by the government. You are all aware of it. So I call upon Sri Amit Shah to move for leave to introduce Jammu Kashmir Reservation Second Amendment Bill. Please. I have already said it. सभापति महोदय, प्लीज बैठ जाइए, याद रहो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा. LOP स्पीकिंग और रिकॉर्ड में नहीं जाएगा. आप लोग बैठ जाइए प्लीज. Some parts of the Jammu Kashmir वो भी कर्फ्यू के अंदर हैं, कश्मीर कर्फ्यू के अंदर हैं. 3 चीफ मिनिस्टर्स और दूसरी पार्टियों के लीडर्स सभी हाउस अरेस्ट थे, और पूरे स्टेट में एक ऐसा वातावरण जैसे वार सिचुएशन है, उसको सबसे पहले उस पर चर्चा करनी चाहिए. ये बिल के साथ पास करेंगे. 3 बिल्स आ रहे हैं. बिल को हम पास करेंगे. 3 बिल्स आ रहे हैं. चर्चा करेंगे. एक रेजोल्यूशन भी आ रहे हैं. ये सभी विषय उसके साथ नोटिस हमने मिलकर हम चर्चा कर सकते हैं. सभापति महोदय, मेरा ये कहना है, सभापति महोदय मेरा ये कहना है, संकल्प पार्टी लेकर आया हूँ, विषय पर है. सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर के लिए जो कुछ भी चर्चा करनी हो, विपक्ष के नेता को और समूचे विपक्ष को और सत्ताधारी पार्टी के लोगों सब पर मैं तैयार हूँ. सब चीजों का मैं जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ, और डिटेल आप न हो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ. मगर मैं जो नो डिस्प्ले ऑफ बैनर्स प्लीज. गुलाम नबी जी, मुझे सुनिए. बोथ ऑफ यू आर important members. You can protest. Sir, that is not the way. माननीय गृहमंत्री जी, आप Home Minister, नबी जी, मुझे nothing सुनिए. else will go on record except Home Minister. He is saying he is ready to answer. What is your problem? Please. अरे भाई, No, I have already given my ruling on this. What is the point of order? What is the rule? No, please, not every day. Every day it's not happening. Please. You can't speak without my permission, Sri Madhusudan Mistry जी. आप वरिष्ठ है, कृपया बैठ जाइए. पुनिया जी बैठ जाइए. What is the rule? Sir, point of order. Everything will come for discussion. But what can I do? You are all friends. Sir, my point of order is on Rule 69. Sir, Rule 69 allows the chairman to use his discretionary power to introduce a bill on the same day without circulating it, without members reading it. It allows you the power, sir. It allows you the power. I have no quibble on that. Sir, my simple point is, sir,
But the rest of the 69, 1, 2, 3, 4 and the first 4 lines, sir, on that I appeal to you, sir, to please, when these bills are circulated, please allow us the time to read these bills, to understand these bills. For example, this is a good bill. Right. But when we are not given the time, sir, I appeal to you, you have the power to circumvent all. But we feel deprived, sir. I got your point. Please, Thank you. I Thank you, respond. sir. I got your point. There is a reason. I do admit that members need time to read it. So even after the minister introduced the bill, the members will be given an opportunity to give amendments up to 12:30 today. Any member on any bill, they can give amendments. Then there will be also time available to you, even to study also before you speak. That arrangement has been made, and I'm saying it officially, it will go on record. Members can, once the bill is introduced, members can move amendments and also start applying their mind. Because we have only 2 days left, so we have to understand the importance. आपका लीडर ने बोला, डोला जी, आप क्यों यार? He is capable. I heard him, and also have taken it positively. So it's not, Anandji, it's not only that bill. There are 2 bills and 1 resolution also. Once they come before you, then you start reacting on that. Home Minister. बिल के खिलाफ नहीं है। Agreed. हमने कहा बिल के खिलाफ नहीं है। Agreed. लेकिन 267 जो हमने नोटिस दी है, उसका भी जो हालात जवाब होगा। कश्मीर में, उसको 1-1.5 घंटे में डिस्पोज आप करिए, माननीय गृह मंत्री मुझे उसका जवाब 5 मिनट दे दें सुनिए। और हम बिल ले लेंगे। नहीं। गुलाम नबी साहब, मुझे 5 मिनट मैंने रूलिंग सुनिए। देने के बाद फिर चर्चा नहीं होगा। मुझे 5 मिनट सुनिए। Please, you are the leader of the opposition, you are well aware of the rules, you raised a relevant point, it's important. Country is also taking note of the same, what is happening and all. It is the duty of the government to explain to the House. The Home Minister told me that he is going to explain it, and he says now itself he is going to explain it. Let us first hear him and let the bill also be moved, and then we discuss. Please, बैठ जाइए. You know, आप बैठ जाइए please, कृपया आप बैठ जाइए. श्री अमित शाह, Honorable Home Minister. Nothing else will go on record other than Home Minister. Other than Home Minister, nothing else will not go on. सभापति महोदय, शिवाजी प्लीज बैठिए. रंगराजन प्लीज सिट डाउन. मैं आज जो रिवाइज अपना बिजनेस का लिस्ट है, उसके अंदर आपने मुझे व्यवस्था दी है कि मैं 2 संकल्प और 1 बिल, जो प्रिंटेड बिल रूल बिजनेस के अलावा मैं प्रस्तुत करूं. मैं चारों चीजें एक साथ प्रस्तुत करूंगा. इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे और उसके बाद में मैं जवाब भी दूंगा, और चारों पर एक के बाद एक कर डिवीजन करना है तो डिवीजन. मगर मुझे भरोसा है कि चारों चीजें पर एक सहमति हो जाएगी, तो हम इस पर चर्चा कर वोटिंग करेंगे. माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा कि कश्मीर की आज की जो स्थिति है उस पर चर्चा करनी चाहिए, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि चारों 2 संकल्प और 2 बिल जो लेकर आए हैं वो कश्मीर इश्यू पर ही है. उस पर आप अपना विचार रख सकते हैं. इस वक्त कश्मीर की आज की स्थिति पर भी रखिए, उस पर भी मैं जवाब दूंगा. अब मैं एक के बाद एक संकल्प और बिल. I have permitted the Home Minister, please. महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत In my own wisdom, I have permitted. It's very important, serious issue. महोदय, It will come to you. One after another, it will come to you, please. महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है. संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा. संविधान के समय समय पर संशोधित बिना किसी संशोधन और अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे. इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 301
ही किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, उपनियम, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो, अन्यथा न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संदर्भित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए। Amit Shah to move for leave to introduce Jammu Kashmir Reservation Second Amendment Bill. Reservation Second Amendment Bill. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। The question is that the leave be granted to introduce the bill. Those in favor, please say aye. माननीय गृहमंत्री ये बताएंगे कितने लोग पड़े हैं आज वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के नियोजन के लिए, वहाँ के इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर भारत सरकार एक विकास का पूरा सिस्टम लेके आ रही है, आज सर कांग्रेस पार्टी को भी जवाब देना पड़ेगा। इतने सैकड़ों हजार लोग मरे हैं, उन कारणों से मरे हैं तो शासन चला है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार एक पूरा नया विजन लेकर आ रही है सर, वो भी चर्चा होगी, उनको बोलने का अवसर मिलेगा। इसकी बात शुरू की जाए सर। इट इज एम्पली ऑन प्रेसिडेंट, ऑन एम्पेरिकल एविडेंस, ऑन पास्ट प्रेसिडेंट एंड आल्सो एट पावर ऑफ लॉ। आई रिक्वेस्ट लेट द डिबेट स्टार्ट। See, Mr. Derek O'Brien has raised a point of order, please. Vaiko, 1 minute, Vaiko. I'll be giving an opportunity to you also. You go to your seat. I'll give you an opportunity to go to your seat. Number 1, please. सुनने के लिए तैयार है तो सही, नहीं तो अदरवाइज ऐसे ही चलना पड़ेगा। Point is, Mr. Derek O'Brien, your leader has raised a point of order. Please sit down. Please sit down. Otherwise, I have to name people. It won't look nice. My point is, Sri Derek O'Brien has raised a point of order, saying, sir, only one bill is distributed. The other bills copies have not even come. I see the merit in what he said. That's why I said. That's why. Please. You don't want to hear anything. You want to create a disturbance like this. Then I will have to ask the Home Minister to introduce other bills also. Baki bills will carry a second. ये जो जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन तथा जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन विधेयक 2019 नाम को में पुनर्स्थापित किया है। संघ सरकार ने
नौकरियों में 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव लेकर मैं आया हूँ। यह आरक्षण अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग और सीमा के आरक्षण के अलावे ज्यादा 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दिया जाएगा। आरक्षण का उपयोग लाभ जम्मू और कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और उसमें जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो बच्चों को देंगे, शिक्षा में भी देंगे, नौकरियों में भी देंगे और एक संवैधानिक आदेश के अनुसार जम्मू कश्मीर में इसको 370 के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर राज्य के मौजूदा आरक्षण के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्था और नौकरियों में 10% आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर सरकार ने ये प्रस्ताव किया है, जिसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर राष्ट्रपति महोदय का अनुमोदन दिया। महोदय, जम्मू कश्मीर की सरकार उक्त प्रस्ताव पर इस मंत्रालय में विचार किया गया था और मंत्रिमंडल की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के अंदर ये सुधार करने के लिए संशोधन आदेश 2019 नामक 1 मार्च 2019 को पारित किया था। अब संविधान में संशोधन आदेश प्रभावी बनाने के लिए इस उद्देश्य से जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन लाने की जरूरत है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के दौरान विधायी शक्तियां संसद के दोनों सदनों में निहित होती है। अतः जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 को संशोधित करने के लिए संसद के द्वारा दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाना बहुत जरूरी है। तदनुसार जम्मू और कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए भारत के संविधान के 103वें संशोधन को लागू किए जाने के प्रावधान के बारे में अर्थात जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन विधेयक 2019 ये सदन स्वीकार करे, ऐसे में सदन के सभी सदस्यों को अपील करें। First you hear me, what I am saying, मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए। मैंने अनुमति दिया केवल, मिस्टर वाइको प्लीज, मैंने अनुमति दिया केवल आरक्षण के बारे में जो एलओपी ने कहा, हमको भी आपत्ति नहीं है, जिसका कॉपी सर्कुलेट किया हाउस में, रिजर्वेशन के बारे में कॉपी सर्कुलेट किया, मंत्री जी ने इंट्रोड्यूस किया, मैंने उनको चर्चा के लिए अनुमति दिया। बाकी जो 3 है वो अभी सर्कुलेट हो रहे, सर्कुलेट होने के बाद वो प्रस्ताव रखेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। ये इसमें भी जहां सम्मति है उसके लिए भी तैयार है हम लोग, रिजर्वेशन के लिए भी। पूरा देश में रिजर्वेशन है, उसी रिजर्वेशन को जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड करने के लिए। आज सिवा आप अपना सीट में गए, इफ यू गो टू योर सीट आई वुड हैव अलाउड यू इवन नाउ, प्लीज गो। एनीबडी वांट टू स्पीक ऑन रिजर्वेशन? रिजर्वेशन, राम गोपाल जी, रिजर्वेशन। हाँ, after Siva want to raise some point of order. Let him go to his seat. Let him go to his seat. I will just allow you 1 minute, Ram Gopal ji. Ram Gopal ji, 1 minute, 1 minute. Let Siva go to his seat. Say Ram Gopal Yadav will be given mic. Please, Mr. Rakesh. ऑफिस का सवाल यह है कि जब जम्मू और कश्मीर को आप स्टेट नहीं मान रहे, जम्मू कश्मीर एक टेरिटरी हो गई, लद्दाख दूसरी टेरिटरी हो गई, फिर इसका को बाद में लाना चाहिए था, पहले नहीं, क्योंकि दोनों तरफ आप टेरिटरी बनाने का, तो इस बिल को बाद में ले आइए। ऐसा है राम गोपाल जी, ये बिल पहले से सर्कुलेट हो चुका था, सभापति महोदय ने इसकी परमिशन भी पहले, इसलिए मैंने प्रस्तुत करा है। वैसे बाकी 3 होते ही नॉन एंड वन ऑटोमेटिक हो जाएगा, 370 चाहते ही बिल ऑटोमेटिक कानून का हिस्सा बन जाएगा। I have permitted you, you have not
sitting here. How can I do it? You can't have the cake and eat it again. Shiva, what is Shiva? Mr. Shiva, go to your seat, then I'll give you. You go to your seat. यहाँ से नहीं होगा. Sir, when 267 notice was given, sir, you said we can discuss everything on the bill, sir. And nothing is related with the bill and the resolution that was given. And later, sir, Home Minister introduced two bills, which was not circulated to us. After he introduced, he got the supplementary list of prisoners. It is totally unprecedented in the Parliament. You are the protector of us, protector of the You have not privileges. understood what I have said. No, sir. It was circulated only later. Agreed. Only later. How could that be accepted? Read today. You try to. You were raising a point of order. You were raising a point of order even when the minister was introducing. Mr. But we were Shiva, not allowed. Mr. Shiva, you have raised a point of order. You want to hear my response? मैं कहना चाहता हूं जी. माननीय सदस्य श्री शिवा ने कहा कि ये पहली बार हो रहा है, सदन में ऐसे कभी हुआ नहीं है. मैं बताना चाहता हूं साहब, 38 बार ये आज की नहीं है. और मैं आपके माध्यम से, भाई बैठ जाओ, मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस सदन के रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं. हम तो जम्मू कश्मीर को, सभापति महोदय, You go to your seat. I will not allow him. As long as you are here, I will not allow him. Please go to your seat. You are a doctor. मेरी बात समाप्त हो जाने दो, डॉक्टर बाद में उनको देंगे. डायरेक्ट मेरी बात समाप्त होकर आप बोलो. Let us try to understand the point of order raised by Derek O'Dell and also the point of order raised by Shiva. What you just hear me now? You don't want to hear? You want to dictate? You want to dictate like this? You ask your members to come to their seats first. The point of order is the bill is not circulated. Discussion should not be there. I agree. I am agreeing. But the reservation bill is already circulated. So let us first dispose the reservation bill. One. Secondly, now that all the bills are circulated, I will be asking the Home Minister to again introduce the bill. About the other three bills, you introduce again. सभापति महोदय, सभापति महोदय, You can't raise point of order to disturb the House. First ask your member to come to the seat. Show the book to them. Show the rule book to those people and ask them to go to their seats. Minister, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि सदन धारा 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचना को सिफारिश करता है. संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत घोषणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह 30 दिन से भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा. उस दिन से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं रहेंगे. सभी उपबंध बिना किसी संशोधन और अपवाद के जम्मू
अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम, विनिमय, अधिसूचना, नीति, विभाग अथवा भारत के भूभाग के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौता जैसा अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अथवा न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं ये संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति महोदय की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संदर्भित करने पर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 19 को स्वीकार करने का विचार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, मैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पर विचार किया जाए ऐसा अनुरोध करता हूं। Please, you ask your people to go to seat, otherwise I will not give permission. Mr. Vaiko, what do you want to say, please? Mr. Vaiko, mic to be given to Mr. Vaiko. Please. So what is your point there? What is your point of order? Mr. Chairman, you are the victim of emergency. Emergency days have come back. Emergency days have come back. Right. This is nothing but part of democracy. There is no emergency, only urgency. Try to understand this. Secondly, if you want to care to hear the chairman, once again I want to clarify, there seems to be confusion. Please hear me. Please hear me. What I want to say, then whatever you want to do. You don't want to hear, then I don't want to hear you also. Mr. Derek, you have to ask your members to sit in their seats. Then you can't create disorder and then ask point of order. How can these two things go together? So, for the sake of record, I want to say one thing. What I permitted the Home Minister is, first, to allow the reservation bill which has been circulated on Friday, which I have permitted. So, he has circulated today again and spoke about it. Agreed. Secondly, he started reading about other bills also, which were not circulated. That is a point of order raised by Siva and also partly by Ghulam Nabi Azad ji. What I want to say is that after my office told me, Mr. Vaiko, you have to go to your seat. Mr. Vaiko, please go to your seat. You are an elderly man. I gave you an opportunity first time. Hey, secondly, after coming to know that these bills were not circulated, then I told the Home Minister after circulation to move them again. They are circulated. And Ram Gopal Yadav ji also brought to my notice. Reservation, he said no problem. But other bills, you have problem. संविधान को इन दोनों का नाम क्या है? नाम बताओ. Nazir Ahmad Rahe and Fayaz have been named by me. They have to go out. The marshals take them out. If they don't go out, take them out. They are breaking the constitution. I can't tolerate it in Indian Parliament. This cannot be. इन दोनों को बाहर भेजना. अदर मार्शल्स को बुला लेते हैं. Other marshals come. No, members go to your place. Members go to your place. Against them also. This has to be understood by all. Leader of the opposition. Leader of the opposition, please. I have permitted the leader of the opposition. Please
हैव पेशेंस प्लीज। माननीय चेयरमैन सर, आपको क्या हो रहा है भाई? माननीय चेयरमैन सर, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक आर्टिकल 370 जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर स्टेट को देश के साथ जोड़ा गया था और 70 साल में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। हजारों सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, अपने जीवन का बलिदान दिया है। हजारों पॉलिटिशियन में, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने लीडर खो दिए हैं, अपने वर्कर्स खो दिए हैं। हजारों बल्कि लाखों, अगर 47 से ले लें, सिविलियंस कुर्बान हो गए हैं। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ रखने के लिए बड़ी कुर्बानी के साथ हो। यह पहली दफा अटेम्प्ट नहीं हुई, लेकिन जब जब भी इस तरह की अटेम्प्ट हुई, कश्मीर के अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम, लद्दाख के अवाम हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे, हर वक्त खड़े रहे, दुख दर्द में खड़े रहे। ये सत्य है, कुछ लोग थे वहां हैं और 47 जो एक्सेशन के खिलाफ, लेकिन I'm coming to that. I'm coming to that. One second. I'm coming to that. One second. I'm coming to You that. know my temperament about you and personally about you. I'm coming The to point is, if you are No, starting no. the discussion, Sir, I can give you longer time. Sir, If you are responding on that, Sir, please. Sir, this is No, if you want to have discussion, I will allow you. Honorable Chairman, sir. Honorable Chair, sir. Please. This I'm is trying to understand something historical has happened. Is not ordinary day-to-day functioning of the bills and passage. So far, Sharab, Magoda, Please, first deposit 10,000 crore with the bank. please. First deposit 10,000 crore with the bank. Because Shut up. Shut up. this will not go on record. These allegations will not go on record. People have corrupted. Both allegations will not go on record. Corrupted people have corrupted. Mr. Ramesh, please go to your seat. And then This will not go on record. selling their properties from Ghulam the Nabi ji, Ghulam Nabi this party to ji, Ghulam Nabi ji, please. Shut up. Please, Ghulam Nabi ji, you can't sell any You member like make a that. loot and then You are a transfer the LOP. parties. Yes, you are a LOP. Please, confine to the issue. Please. Confine to the issue. historical Nothing shall go on record. Nothing shall go on record about charges. repay his bank loan. No. He should pay. आप बैठिए. He demand. No, you can't insert number like that. They cannot. You cannot make personal allegations. Going to the What? trap of the BJP. Then your own members also. They are making loot. You want to say something, say it, otherwise it will not go on record. Even what the LOP is saying also will not go on record. Sir, I strongly condemn the act of 2 or 3 members of the parliament, none from my party, and none from us, those who are sitting here. We stand by the Constitution of India. हम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा देंगे, Which is being murdered today. लेकिन हम कंडम करते हैं उस एक्ट को जिसके द्वारा प्लीज शो यू शट अप Mr. Vaiko, हम उसको उस एक्ट को कंडम करते हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को जलाते हैं या तो Right. जलाया नहीं Right. या उसको फाड़ते हैं। लेकिन आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया, लोकतंत्र का मर्डर किया, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का मर्डर Right. किया। Thank you. जिस संविधान के द्वारा Thank you. जिस
आर्टिकल 370 के द्वारा हमने हिंदुस्तान को कश्मीर दिया। आज उसी संविधान और अजी लोकतंत्र को मोदी सरकार ने धज्जियां उड़ा दी। इसीलिए हम दोबारा प्रोटेस्ट करते हैं। माननीय सभापति महोदय, गुलाम नबी साहब ने कहा कि धारा 370 ऐतिहासिक है। मैं इसके विवाद में जाना नहीं चाहता, मगर मैं जो बिल लेकर आया हूं वो भी ऐतिहासिक है, इतिहास बनाने वाला बिल। धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अवाम आज गुर्बत में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता। वहां की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, वहां के दलितों ट्राइबल के साथ अन्याय हो रहा है, वहां भ्रष्टाचार पनप रहा है। और 370 की छाया में तीन परिवार ने जम्मू कश्मीर को इतने सालों तक लूटा है। सभापति महोदय, विपक्ष के नेताजी ने कहा, विपक्ष के नेता ने कहा कि धारा 370 ने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा है। माननीय सभापति महोदय, ये सत्य नहीं है। महाराजा हरि सिंह द्वारा 27 अक्टूबर 1947 को अब जम्मू और कश्मीर साइन किया गया। मैं फिर से तिथि कहना चाहता हूँ, 27 अक्टूबर 1947 को, और धारा 370 1949 में आई, जम्मू कश्मीर छूटने के बाद 2 साल तक। ये सत्य नहीं है कि जम्मू कश्मीर में भारत के साथ, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ धारा 370 ने जोड़ा है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 ने कभी भारत के साथ एक रस नहीं होने दिया। और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर गुलाम नबी आजाद साहब कहते हैं कि ये गैर संवैधानिक तरीका है, तो वाद विवाद करे, शोर शराबा न करे, संविधान की जिस धारा को वो कहना चाहते हैं इसके अंतर्गत चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूं। संविधान जब बना तब से धारा 370 को अस्थायी माना गया। क्यों अस्थायी माना गया? अस्थायी इसलिए माना गया माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कभी न कभी इसको हटना था, बहुत पहले हटना था, मगर किसी में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था। वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी थी, इसके आधार पर वोट बैंक बनानी थी। हमें ना वोट बैंक बनानी है, ना हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। नरेंद्र मोदी जी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, इसलिए आज कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पारित किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं कि कृपया इस पर चर्चा करिए। देश जानना चाहता है कि इतने समय धारा 370 क्यों चालू रही। देश जानना चाहता है इतने समय कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार क्यों हुआ। देश जानना चाहता है कश्मीर के दलितों को रिजर्वेशन का फायदा क्यों नहीं मिला। देश जानना चाहता है कश्मीर के ट्राइबल को पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला। देश जानना चाहता है 33A के तहत कश्मीर की माताओं बहनों को अपने बच्चों को कश्मीरी कहलाने का अधिकार क्यों नहीं मिला। देश जानना चाहता है सभापति महोदय, सबसे ज्यादा पैसा कश्मीर के अंदर गया, फिर भी कश्मीर का लोग आज गरीब क्यों है, वो देश जानना चाहता है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं विपक्ष के सभी सभासदों को, कृपया चर्चा करिए। आप आपके तर्क बेखौफ रख सकते हैं, शौक से रख सकते हैं। मैं हर एक तर्क का जवाब दूंगा और मैं दृढ़ मान्यता के साथ आया हूं कि धारा 370 हटाने में 1 सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए।